Retinitis pigmentosa is not very uncommon. 1 in 4,000 people are suffering with this problem. Retinitis pigmentosa, in short, is called as RP and is also called as night blindness, is a very dreaded disease. I am Dr. Goyal from Sanjeevan for Perfect Eyesight, Bombay. Today we are talking about guidance to the friends and families where people are suffering with RP. Any family member or any friend who is having retinitis pigmentosa, what are the guidance for those people, how they can take care of the patients of RP? Very important issue. Is a genetic problem. As I said, it is called as night blindness also, or rot cone dystrophy, or retinitis pigmentosa. If it is typical, then we start losing vision from periphery to towards central side. One point of time, it looks like person is seen from a tunnel. Then it comes more closer, and then one time it becomes a vision of like pipe. And if it get close, the vision loss का डर भी रहता है. If it is atypical, center and periphery both area get affected. ये सारी चीजें मैंने दूसरी वीडियो में भी डिस्कस की हैं. If it is severe form, then विजन लॉस हो जाता है, खाली लाइट परसेप्शन रहता है. तो अगर टाइम पे ध्यान दिया जाए तो we can stop the deterioration or we can prevent the deterioration of the vision and we can improve vision as well. The genetic problem cure नहीं है, that we know, but treatment is possible in Sanjeevan for Perfect Eyesight where we activate the dormant cells and about to dystrophic cells. ये सारी टॉपिक मैंने दूसरी वीडियो में कवर किए, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है आरपी पेशेंट्स को बिफोर दे लूज देयर विजन, which we do here in Sanjeevan for Perfect Eyesight, Bombay. We get people from all over the world, doctors and non-medical people and all days people and all from all fields, male, female and all that. We get plenty of people for the treatment and definitely we are getting very, very good results in improving vision in RP cases. Though the cure is not there, but treatment is possible because of the genetic problem. One important issue in RP, if it is a consanguineous marriage, once the close relative or the cousins get married, then so many genetic problem comes. So many places, cousins they get married, have lot of genetic problems, mental disorders, and other diseases, and resistance, and immunity, and lot many things can happen. I have seen in my experience in 2004, the plenty people coming here having a consanguineous marriage or the marrying two cousins, then it happens CM, cousin marriage or consanguineous marriage. It is a very precipitating factor for this disease. And the vision loss is a ultimate fate of this disease if it's been not taken care properly. Guidance to the relatives and friends is very important where the RP people or RP patient is there in the family and our circle. They are important people. They should be taken care very well. They should get the importance. नेग्लेक्टेड फील नहीं होना चाहिए उनको, ऐसा फील होना चाहिए कि दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू द हाउस और होम और सोसाइटी. दैट प्लेज ए लॉट ऑफ गुड रोल उनकी मेंटेनेंस और लाइफ और एक्टिविटी और फॉर देयर हैप्पीनेस एंड फॉर देयर विजन. इट हेल्प्स ए लॉट. मेकिंग देम इम्पोर्टेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. They can be independent, try to make them independent for their own activities or own their works, but same time they should be given importance is very, very important factor. From morning to night, we should take care of them. Like morning walk is very, very good for them. If the vision is less or good, they should go for morning walk either with or without support. That plays a very good role for their vision improvement and for their mental status also. जब वो बाहर जाते हैं
मॉर्निंग वॉक के लिए, दे हैव ए वाइड विजन टू सी, वेरी वाइड विजन। क्योंकि आरपी केसेस में सन एंड डार्कनेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द डार्कनेस, रात को दिखने में तकलीफ, इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। तो बहुत तकलीफ होती है, दिन में थोड़े बेटर रहते हैं, तो जब वो सन में या उजाले में जाते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रेटिनल सेल्स, काफ़ी हेल्प मिलती है उनको, उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि दे गेट सम विजन if we compare night vision and day vision. So, sun and the light is very important. In Sanjeevan for perfect eyesight, there is one step called as sun treatment, where they close their eyes and face the sun or light and they move left to right and right to left. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसमें. So, sun treatment is very, very effective. So, lot many vision therapies are being accepted or being given here in Sanjeevan for perfect eyesight for RP people. तो अगर वो एक्टिविटीज गुड हैबिट्स फॉर द आईज भी दी जाती हैं, ये गुड हैबिट्स एंड विजन थेरेपी अगर आरपी के केसेस को कराया जाए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, बिकॉज आईज एंड ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड. Once eyes are relaxed, brain is relaxed. In mother's womb, when the brain starts developing, the same time two eyebuds also develop. We had in embryology. So the eyes are part of brain. So relaxation here means the relaxation here. If somebody having a very less vision, if you go and see, they are frustrated. They are frustrated here, they are frustrated there also. So a little bit improvement also is a very great improvement for them. And सबसे महत्वपूर्ण बात, to stop the deterioration of the vision is very important issue in RP cases, because in RP cases में every single day and every day vision deterioration is there, small. To stop that deterioration also a big achievement in the case of RP. मैं यहाँ देखता हूँ संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट में उनका विजन डिटोरिएट तो रुकता ही है, साथ में इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, वो मैंने पहले दिन से इम्प्रूवमेंट भी देखा लोगों का. So, taking care of their vision and the activities and lifestyle is very important. As I said, morning walk हो जाना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, लिक्विड्स अच्छे से लेना चाहिए. इनका डाइट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट शुड बी gastrointestinal friendly or liver friendly because they are all related to each other. उनको डाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए. ये पूरे दिन को साइकिल्स में डिवाइड किया गया. जैसे अपनी अर्थ है, दे हैव ए साइकिल, डे एंड नाइट, सीजन्स, टाइड. अपनी लाइफ की भी एक साइकिल होती है, बॉडी की साइकिल होती है. इन 24 आवर्स को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 8 आवर, 8 आवर, 8 आवर. दोपहर में 12 बजे से रात को 8 बजे तक, दैट इज गुड डाइजेशन इन दैट डाइजेशन टाइम, जहां अपन कुक फूड खा सकते हैं. रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, दैट इज ए एब्जॉर्प्शन टाइम. जो हमने 12 बजे से 8 बजे तक रात को कुक फूड खाया है, दिन के 12 बजे से रात को 8 बजे तक, वो फूड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है. और रात को जब एब्जॉर्प्शन होता है तो न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है, रिपेयर वर्क करती है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को रिपेयर करती है. रेस्टिंग टाइम है. और रात को 4 बजे से सुबह 8 बजे तक, और आई शुड से नॉट 8 बजे, शुड बी 12 बजे तक, 4 से 12 तक एलिमिनेशन टाइम रहता है. एलिमिनेट द वेस्टेज वॉट एवर बी रिमेनिंग, जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद रेजिड्यू है, डेब्रीज हैं, जो एक्सक्रीशन है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड. इसलिए देखा होगा अपन सुबह नींद से उठते तो वी रश टू द टॉयलेट. सो अगर ये 3 साइकिल को फॉलो किया जाए, आई रिपीट अगेन, दोपहर में 12 बजे से रात को 8 बजे तक कुक फूड खाया जा सकता है. रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक रिपेयर वर्क चलता है, एब्जॉर्प्शन होते हैं न्यूट्रिएंट्स. और 4 बजे से दोपहर को 12 बजे तक एलिमिनेशन टाइम रहता है. वैसे तो सारी एक्टिविटीज पूरी बॉडी में दिन भर चलती है, लेकिन सर्टेन टाइम
पर कुछ एक्टिविटीज बहुत अच्छे से वर्क करती है, जैसे मैंने अभी बताया। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर भूख लगे तो अपन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन जो कुक फूड है दैट रिक्वायर लॉट ऑफ हेल्प फॉर डाइजेशन, तो अपने एंजाइम्स बॉडी के बहुत यूज होते हैं, एसिडिक फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो सब एल्कलाइन फॉर्म में रहे तो बहुत अच्छा है। तो ये जो रूटीन है दैट इज वेरी वेरी गुड। ये अगर फंडा क्लियर किया जाए तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। ज़्यादातर रॉ खाएं, रॉ नहीं हो तो स्टीम खा सकते हैं, स्टीम नहीं है तो सौते कर सकते हैं। लास्ट इज बॉइलिंग। रॉ इज वेरी गुड, क्लीन दैम, प्रॉपरली टेक केयर ऑफ दैम, हाइजीन, then it can be consumed in the form of salads or juices or vegetable or fruit juices. They are wonderful fat. जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बोला है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स, ओमेगा 3 जैसे फिश में, सालमन, टूना फिश में मिलता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है अपने रेटिनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। रेटिनल हेल्थ मीन्स द रेटिना इज द बैकमोस्ट लेयर ऑफ द आई, जहाँ ये प्रॉब्लम शुरू होती है या जहाँ प्रॉब्लम होती है, उसकी हेल्प के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। डाइट इज वेरी वेरी मेजर इश्यू फॉर ऑल दिस केसेस। डाइट लाइट रहे या डाइजेस्टेड रहे तो उनको बहुत लाइट लगता है, जिससे मेंटल स्टेटस, डेली रूटीन वर्क एंड होल डे पासिस वेरी। नॉर्मल लाइफ में जैसे अपन जहाँ घर रहता है या जहाँ वो रहते हैं या आसपास के कमरे हैं, क्लटर्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि जो वे जहाँ से चलना फिरना रहता है, रास्ते में अड़चने ना हो, कोई चीज़ नहीं पड़ी हो या कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं हो, ये बहुत अच्छा रहता है आपके। नॉर्मल एल्यूमिनेशन शुड बी देयर इन द प्लेसेस जहाँ पर वो आराम से देख के चल फिर सकें, क्योंकि खुद चलना फिरना या खुद की सेल्फ डिपेंडेंसी को बहुत मॉरल बूस्ट करती है। जैसे मैंने बोला, कहीं के लिए रात और दिन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रात को वॉक करना भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे रिमोट एरियाज में मैंने ये भी देखा है, तारों की छाँव में, स्टार्स की लाइट में या मून लाइट में चलना आरपी केसेस को बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना है, जो रॉड्स का बना रहता है, वो नाइट में ही एक्टिवेट होते हैं, अंधेरे में एक्टिवेट होते हैं, और वहीं प्रॉब्लम शुरू होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो रात को मूवमेंट करना, रात को चलना इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इन द डे टाइम, बट ध्यान रहे कि उनको कहीं लगे नहीं, विजन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लें। अगर खुद चल सकते हैं तो बेस्ट, नहीं तो किसी का सहारा लें। ऐसी जगह जाए जहाँ ऑब्स्टिकल्स नहीं हो, जहाँ गिरने का डर नहीं हो, डैश करने का डर नहीं हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। उनका प्रोफेशन जो वो करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आंखें ज़्यादा यूज होती हैं प्रोफेशन अवॉइड करें, जहाँ कान ज़्यादा यूज होते हैं सुनने का स्किल्स वगैरह में, तो वो ज़्यादा प्रोफेशन अच्छा रहता है। ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन करने के लिए, ज़्यादा फ़ोन को बड़ा करके देखने के लिए सारा स्ट्रेन रहता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर दिस पीपल, दे आर नॉट गुड फॉर दिस पेशेंट्स। जितना आंखों को स्ट्रेस और स्ट्रेन करेंगे डिटोरेशन में, और उनको ज़्यादा डिटोरेशन हो सकता है। तो रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑडियो या ऐसी प्रोफेशन जिसमें आंखों को बहुत यूज़ ना करना पड़े, ज़्यादा बेटर रहता है। जिनको कम विजन का प्रॉब्लम है, दे वर्क ऑन द कंप्यूटर, जिन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं हो, तो गुड हैबिट्स फॉर द आईज फॉलो करें, जो यहाँ संजीवन को परफेक्ट आई साइड में हर पेशेंट को दी जाती है। आंखों को कैसे यूज़ करें, जब गैजेट्स पे काम कर रहे हैं, तो टीवी पे काम कर रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं, तो अगर विजन बहुत कम लॉस है तो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलो द गुड हैबिट्स फॉर द आईज, विजन थेरेपी मेंटेन करना, डाइट मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाने में ऐसी चीज़ अवॉइड करें जो बहुत हैवी हो, फ्राइड हो, फास्ट फूड्स हो, आउटसाइड अवॉइड करें। अपन बाहर का कुछ खाते हैं तो जो ऑयल यूज़ करते हैं वो रीयूज़ करते रहते हैं, रीयूज़, दैट इज बिकमिंग वेरी बैड फॉर द अवर हेल्थ। सो उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट, उनको कंपनी बहुत अच्छा देना चाहिए, बिकॉज दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। कंपनी ऐसा नहीं हो कि उनको बर्डन महसूस हो, दे शुड बी टू ईच अदर, बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड, रिलेटिव एंड द पेशेंट, because bonding pays a lot of relief to the brain. Life is a mind game, I should say, brain game. So once this is relaxed, the whole life is trying to be relaxed.
तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, जिसमें वो उनको इम्पोर्टेंस महसूस कराई जाए, उनका अच्छे से टाइम निकले, जैसा भी उनका विजन है उसके अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज डेली की बहुत अच्छी हो, डाइट बहुत लाइट हो, हाइड्रेशन पानी वगैरह पीने का है, लिक्विड्स काफ़ी अच्छी 2 से 3 लीटर पानी वगैरह पीना चाहिए। ज़्यादा जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं रहते उनके लिए, तो मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क में भी बहुत डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज रिक्वायर्ड टू मच ऑफ एंजाइम्स एंड टू हेल्प देम टू डाइजेस्ट, सो ट्राई टू अवॉइड। नॉन वेज बहुत लिमिटेड रहे तो अच्छा है, जैसे सर्टेन थिंग्स साल्मन टूना फिश इज गुड फॉर देम, मे बी एग्स आर गुड फॉर देम, बट मीट एंड एवरी अदर थिंग्स आल्सो टू बी अवॉइडेड। They should avoid alcohol also, or any drugs. If they are used to, it should be avoided. These all important issues can be taken care of अगर उनके अच्छे से ध्यान रखे जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। रात को उनकी बैठने कंफर्टेबल हो, दिन में लाइटिंग इल्यूमिनेशन बराबर हो, रात को चलने फिरने में बीच में ऑब्स्टैकल्स ना हो, कंपनी बराबर दी जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, जिससे दे शुड फील इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी दैट प्ले द गुड रोल इन दैट। The ultimate aim of the bad retinitis pigmentosa is they can maintain their vision where they can be independent for their own work. और अगर विजन का लॉस कम है तो वो वहीं रोका जाए और वहाँ से और इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज जनरली वी हैव 4 टाइप ऑफ सेल्स इन रेटिना। 1 सेल्स आर लाइव सेल्स जिनसे हमको दिखता है, अदर सेल्स आर डिस्ट्रॉफिड सेल्स जहाँ से हम नहीं दिख सकते, थर्ड ग्रुप ऑफ सेल्स आर अबाउट टू डिस्ट्रॉफी, जो डिस्ट्रॉफी हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा गया तो, एंड फोर्थ आर द सेल दे आर लाइंग इन द रेटिना, दे आर नॉट एक्टिव एंड दे आर नॉट डिस्ट्रॉफिड, आल्सो कॉल्ड एज वीक सेल्स और डॉर्मेंट सेल्स। तो हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको कुछ किया जा सकता है, एक तो अबाउट टू डिस्ट्रॉफिड सेल्स एंड एक डॉर्मेंट सेल्स, जो दोनों सेल्स का टारगेट संजीवन को परफेक्ट आईसाइट करता है, एंड उसकी वजह से पेशेंट को विजन इंप्रूवमेंट होता है। मैंने यहाँ किसी भी एज के लोगों को इम्प्रूवमेंट होते देखा है। अगर मेंटेन किया जाए, विजन थेरेपी कंटिन्यूस किया जाए, नेचुरल रूप से सप्लीमेंट कंटिन्यू किए जाएँ, डाइट अच्छे से रखा जाए, गाइडेंस अच्छे से मिले और अच्छे से ध्यान रखें होगा, तो दे कैन मेंटेन देयर गुड विजन फॉर लाइफ लॉन्ग। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड लाइफ ऑफ ए आरपी पर्सन इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो। तो जैसे अगर अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रह सकते हैं, दे कैन बी वेरी वेरी बेनिफिटेड फॉर द विजन, उनकी विजन मेंटेन रह सकती है और इम्प्रूव कर सकती है। आई विल टॉक दिस मच इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.